गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ। ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸੇ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਨੂੰ 100% ਪਿਓਰ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਜਲਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੱਕੜ ਹੈ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ 100% ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਦਾ ਕੰਬਸਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 20% ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਲੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 100% ਪਿਓਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੈ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਵਧਦਾ। The rate of reaction becomes double for every 10 degree rise in temperature। ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਾਜੇ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਬੌਂਡਸ ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ। अगर ये प्रोसैस जल्दी हो जाता कि ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड ईजी हो गई और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जी सी भी जल्दी हो गई तो वो रिएक्शन का रेट की हो जाता, फास्ट हो जाता। अगर यही प्रोसैस स्लो आ कि बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहे हैं और फिर फॉर्मेशन भी स्लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमैटिकली स्लो हो जाता। सो डिपेंड करता कि आप रिएक्टेंट किदां दे लए आ, कि वो ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, कि वो नवे बॉन्ड जिहड़े बनाने दे विच उन्हां दी अट्रैक्शन हैगी है, कंबीनेशन हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स के रेट डिपेंड करेगा। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ NO ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ NO2 ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ सेम रिएक्टेंट आप ऑक्सीजन यूज करते हैं, ये रिएक्शन का रेट की होंदा, स्लो होंदा। सो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन दे विच रिएक्टेंट किदां दे आ, नेचर किदां दी उन्हां दी, कि वो कंबाइन कर सकते हैं, कि वो नवे बॉन्ड ईजिली बना सकते हैं, कि उन्हां दे पुराने बॉन्ड ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। इहनूं बोलदे हैं नेचर। नैक्सट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। हुण देखो कैटालिस्ट का की काम होंदा, कैटालिस्ट जिहड़ा होंदा रेट ऑफ रिएक्शन नूं वधा भी सकदा। कई अपने कोल कैटालिस्ट घटा भी दिंदे आ विदाउट अंडरगोइंग एनी कैमिकल चेंज, पर उन्होंने अपने आप उन्होंने कोई कैमिकल चेंज नहीं आती। यानी जिदा का आप कैटलिस्ट ऐड किया सी एंड के अलग होकर
अलग ही निकल आऊगा, प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲਿਸਟ ਜਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਪਲੈਟੀਨਮ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬੜੀ ਫਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਜਲੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਜਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਰੀਕ ਪੀਸਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਲਣ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਗਏ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ, ਏਰੀਆ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਰਲ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਨਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਟੋਨਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਚ ਫੋਟੋਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਸਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫੋਟੋਨਸ ਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਰਕ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਆ ਟੋਟਲ 6 ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ 6 ਦੇ 6 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ 6 ਦੇ 6 ਰਜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਸਟ ਹੈ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ। ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਰੇਟ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਸਪੀਡ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਫਾਸਟ ਚੱਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। अगर कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की घटती है ऑटोमैटिकली रेट घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन ओनली आप कंसनट्रेशन की नोट करनी है रिएक्टेंट्स की, क्योंकि प्रोडक्ट तो शुरू च अपने को होंगे ही नहीं है। तो आप देखिया है भी शुरू के रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे ना, उस वक्त रिएक्शन बड़ी तेज़ होंगे, जो रिएक्टेंट घटते जाते अपने आप रेट जो स्लो होना शुरू हो जाता। सैकेंड टैंपरेचर बढ़ाने ते रेट बढ़ना ही बढ़ना है और ऑटोमैटिकली रिएक्टेंट एनर्जी गेन कर जाएंगे, जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे और 10 डिग्री राइज लिए रेट जो है डबल हो जाएगा। इसी तरह नेचर ऑफ रिएक्टेंट से भी रेट डिपेंड करेगा। अगर बॉन्ड्स ईजिली ब्रेक हो रहे हैं या फॉर्मेशन ईजी हो रही है तो रेट ऑटोमैटिकली इनक्रीज करेगा। ऐसे तरीके के नाल आपां कैटलिस्ट का दस सकते हैं कि कैटलिस्ट पाउण ते रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इसी तरह सरफेस एरिया जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्ना रेट ऑफ रिएक्शन की होएगा, फास्ट होएगा। लास्ट एक्सपोजर टू रेडिएशन, जिन्नी आप एक्सपोज करांगे रेडिएशनस नूं रिएक्शन उन्ना फास्ट होने चांस होंदे आ। और ये देखा गया कि कुछ रिएक्शन सिर्फ रेडिएशनस नाल ही होंदे आ, उन्हां नूं अगर असीं डार्कनेस च करन दी कोशिश करिए तो नहीं होंदे। सो एक टॉपिक रजे तुहाडा कंप्लीट हो गया फैक्टर्स का। हुण असीं अगला टॉपिक करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आ क्योंकि इस लैसन दे विचों चाहे आपां नूं न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आने हुंदे आ, पर लैसन की नॉलेज होना, हर पॉइंट क्लीयर होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ कितों भी पूछी जा सकती है। अगर सानू नॉलेज हैगी आ फिर तो आपां कोई भी आंसर दे देंगे, अगर नहीं हैगी फिर आपां जिहड़ा हैगा वो आंसर जिहड़ा है चूज नहीं कर पावांगे। ठीक है जी।
लॉ ऑफ मास एक्शन जिहड़ा अगला अपने को ला आ गया। लॉ ऑफ मास एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट ला है, पर इन्ना याद रखना कि जो भी लॉ ऑफ मास एक्शन दिमाग च आवे इट इज़ ए थ्योरेटिकल कंसैप्ट, ये जरूर आ जाना चाहिए। एक्सपैरीमेंटली दी वेरीफिकेशन नहीं हैगी, इट इज़ ए थ्योरेटिकल कंसैप्ट। थ्योरेटिकल कंसैप्ट के अकॉर्डिंग सानू ये दसदा, पॉइंट इहदा गलत नहीं है, ये सानू लॉ ऑफ मास एक्शन ये दसदा कि जिहड़ा रेट हुंदा रिएक्शन का जिहदी असीं गल कर रहे हैं, इट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट इत्थे मैं गुणा नूं कह रही हाँ, ठीक है, मल्टीप्लाई नूं। सो दोबारा सुन लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ओनली रिएक्टेंट्स का ना लिया मैं, प्रोडक्ट्स का नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखावा कि इसका मतलब क्या, मान लो अपने को दो रिएक्टेंट्स आ और दो जी है प्रोडक्ट अपने को बन रहे हैं, उहदे मुताबिक रेट जिहड़ा है इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ ए गुणा कंसनट्रेशन ऑफ बी। सो ला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे आ रेट फास्ट होंदा रिएक्शन का, लेकिन रिएक्टेंट्स के घटन से रेट जिहड़ा डिक्रीज होने लग जाता, ऑटोमैटिकली घटन लग जाता, तो ऑब्जर्वेशन सही है। सो लॉ ऑफ मास एक्शन गलत नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कि जिहड़ा रेट होएगा इट विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर इन्हां दे मोरे आपां कोई भी कोफिशिएंट यूज़ करते 2 या 3 तो पावर की हो जानी सी, रेस हो जानी सीगी, उन्नी पावर जी रेस करके असी रेट जिहड़ा वो कढ़ सकते हैं। इत्थे प्रपोर्शनल हटा के असी की करते हैं, रेट इज इक्वल टू के लगा देने हैं, के कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी। दिस के इज नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट डिफाइन करना भी आ जाता, रेट कांस्टेंट की हुंदा है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सो रेट कांस्टेंट के करैक्टर की है ये भी पूछे जाते हैं। रेट कांस्टेंट जिहड़ा वो कांस्टेंट होएगा जो असीं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के लगाने हैं, इट इज़ रेट कांस्टेंट। इनू डिफाइन कितना कर सकते हैं, अगर असीं ए की कंसनट्रेशन ते बी की कंसनट्रेशन एक पुट कर दईए, मैं ये भी एक रख लई, ये भी की कीती एक भारती, तो ऑटोमेटिकली रेट किहदे बराबर शो हो गया कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पैसिफिक रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये रेट के बराबर ही होएगा कदों, जदों असी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। रिएक्टेंट 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 1 भी हो सकता, तो सारे रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन असी कितनी ले लेने आ यूनिटी, जो एक भर देने उस वक्त रेट जिहड़ा रेट कांस्टेंट और रेट के बराबर शो हो जाता है। सो ये करैक्टर की है फिर रेट कांस्टेंट के, इसका फायदा की है रेट कांस्टेंट को कढ़न का। अगर असीं इत्थों रेट कांस्टेंट ड्राइव कर लांगे, रेट कांस्टेंट जिहड़ा होएगा वो सानू मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन दसेगा या रेट ऑफ रिएक्शन बारे दसेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होएगा या स्लो। अगर तक के की वैल्यू ज़्यादा आती है, लार्ज आती है, फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होएगा। अगर के की वैल्यू घट जाती है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन की चलता है, स्लो चलता। सो के की वैल्यू कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हैगा, वो सानू रेट बारे इन्फॉर्मेशन दिंदी है। सैकेंडली ये करैक्टर हैगा कि जिहड़ा रेट कांस्टेंट होएगा एक अलग अलग रिएक्शनस लिए अलग अलग होएगा, फॉर डिफरेंट रिएक्शनस इट विल बी डिफरेंट, पर एक सिंगल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होएगा, तद इहदा नाम कांस्टेंट है। एक सिंगल रिएक्शन जिहदे विच असीं टैंपरेचर चेंज नहीं करते, एट कांस्टेंट टैंपरेचर के दी वैल्यू जिहड़ी वो कांस्टेंट रहेगी जिन्नी देर तक आपां वो टैंपरेचर नूं चेंज नहीं करते। हाँ, टैंपरेचर चेंज करन ते फिर रेट ते इफैक्ट पेगा और उहदे नाल फिर रेट कांस्टेंट ते भी इफैक्ट पेगा। जिन्नी देर टैंपरेचर कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू जिहड़ी है कांस्टेंट रहेगी। और ये किसी भी रिएक्शन की एक पहचान है, करैक्टरिस्टिक है कि के दी वैल्यू अगर इस रिएक्शन लिए इन्नी है तो रिएक्शन किहड़ा है, यानी जिदा फिंगरप्रिंट एक पहचान बन जाती है तो रेट कांस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की एक पहचान बन जाता। इस तो इलावा जो रेट कांस्टेंट हैगा ये अपने कोल ये भी याद रखना होएगा कि इनू इनिशियल कंसनट्रेशन वाले का कोई संबंध नहीं, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन असी जिन्नी मर्जी ले लीए, रिएक्शन का रेट पूरे टाइम जो अगर टैंपरेचर नहीं चेंज होता ये कांस्टेंट आई जाएगा तुहाडे कोल। सो इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हुण अगला क्वेश्चन आ जाता कई बार ये पूछते हैं रेट ते के दे विच फिर फर्क की है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन तैयार करना आपां ने। हुण रेट का पता लग गया आपां नूं, रेट की है, रेट तो एक स्पीड हैगी है विद विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, या तुसीं आपां जे डिफाइन करना आपां कह सकते हैं इट विल आपां शो कर सकते हैं विद डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम या इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम, इन्हों असीं बोलते हैं रेट।
लेकिन रेट कॉन्स्टेंट जिहड़ा है इट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट होएगा इन रेट ला एक्सप्रैशन। इनू असीं रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, तो इक्वेशन के जिहड़ा कॉन्स्टेंट नज़र आएगा दैट विल बी रेट कॉन्स्टेंट और इट विल बी इक्वल टू रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी। इहदी डेफिनेशन ये होएगी। दूसरी चीज़ रेट जिहड़ा हैगा वो तो कंसंट्रेशन ते डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ते वो डिपेंड करेगा। जिन्नी ज़्यादा होएगी रेट ज़्यादा, जिन्नी घट रेट घट, पर रेट कॉन्स्टेंट विल नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये पूरी रिएक्शन च कॉन्स्टेंट आएगा, तुहाडे कोल कॉन्स्टेंट वैल्यू शो करेगा, सो ये कंसंट्रेशन ते डिपेंड नहीं करेगा। फिर रेट के यूनिट लिख रहे हो तो की लिखोगे तुसी? रेट किहदे बराबर है राजे? कंसंट्रेशन ओवर टाइम। ठीक है, आही अपने कोल यूनिट इत्थों बना सकते हैं आपां। कंसंट्रेशन आपां काहदे च मापते हैं? मोल पर लीटर, और टाइम का च मापते हैं सेकंड। तो यूनिट की तैयार हो गया? मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट का यूनिट नहीं भूलना तुसी। रेट जिहड़ी है तुसी रिएक्टेंट्स बटे टाइम लै रहे हो ना, स्पीड लै रहे हो रिएक्टेंट की, तो वो तुहानूं कित्थों पता लगनी है? कंसंट्रेशन लै रहे हो तुसी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम। ठीक है, सो कंसंट्रेशन जिहड़ी है मोल पर लीटर च मापी जाती है, टाइम सेकंड च, सो यूनिट बन गया मोल पर लीटर पर सेकंड। लेकिन रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट चेंज हो जाते हैं, ये अगे जाके आप पढ़ांगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इत्थे असीं यही दस सकते हैं कि रेट ऑफ जिहड़ा रेट कॉन्स्टेंट है ये जिहड़े यूनिट्स होंगे इट विल डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिहड़ा कि साडा अगला टॉपिक आ। उहदे विच असीं देखांगे कि और उहदे चेंज होने दे नाल ऑर्डर दे नाल के दी वैल्यू जिहड़ी आ, के दे यूनिट्स भी चेंज होणगे, क्योंकि रेशो तो निकलूगा ना। के कित्थों कढोगे तुसीं? के इदां ही कढोगे तुसीं। के किद्दां कढोगे? रेट ओवर कंसंट्रेशन, इत्थों निकलेगा राजे। और रेट ओवर कंसंट्रेशन जदों तुसीं यूनिट्स बनाओगे तो डिपेंड करेगा भी इत्थे किन्ने रिएक्टेंट्स है, उहदे नाल के दा यूनिट की होएगा? चेंज होएगा। उहनूं असीं कहने हैं कि इट विल डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ये तुहाडी डिफरेंस आ गई। अगला टॉपिक है अपने कोल रेट ला एक्सप्रैशन। इहदे तो अलग चीज़ आपां करदे हां। रेट ला एक्सप्रैशन एक नवीं टर्म आ गई अपने कोल, जिहड़ी इस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, दैट इज रेट ला एक्सप्रैशन। सो रेट ला एक्सप्रैशन की है? रेट ला एक्सप्रैशन शुरू करने तो पहला यदि भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपने कि इट इज एक्सपैरीमेंटल कॉन्सैप्ट। ये एक्सपैरीमेंट के बेस पे ही कैलकुलेशन हुई हुई है, ये थ्योरेटिकल नहीं हैगा। ये आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन ते रेट ला एक्सप्रैशन की फर्क है। तो मेन डिफरेंस यही है कि लॉ ऑफ मास एक्शन है जो इट इज़ ए थ्योरेटिकल कॉन्सैप्ट, पर जिहड़ा आप रेट ला एक्सप्रैशन कर रहे हैं इट इज़ एक्सपैरीमेंटल कॉन्सैप्ट। और दोनों ने मैयर सेम चीज़ की है, दोनों ने दसिया भी सेम है कि जिहड़ा रेट हुंदा इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता, पर कंसंट्रेशन कितनी टर्म पर डिपेंड करेगा, ये दोनों ने अलग अलग हो गया। रेट ला एक्सप्रैशन दे विच उन्हें एक्सपैरीमेंटली फाइंड आउट करना शुरू किया कि कंसंट्रेशन की कितनी टर्म पर रेट डिपेंड करेगा, तो कुछ अलग आया। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो आ रिएक्शन चैक किया गया 2NO2 ये एक्सपैरीमेंटली देखा गया, ये प्रोडक्ट बन रहा अपने को 2NO2F। तो अपने को रेट जिहड़ा सीगा वो किहदे बराबर आ रहा सीगा? रेट आ रहा सी कि कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ F2। ये आ रहा सी रेट ला एक्सप्रैशन के अकॉर्डिंग, जिहड़ा कि असीं एक्सपैरीमेंट करके फाइंड आउट किया कि एक्चुअल दे विच रेट कितनी टर्म पर डिपेंड कर रहा है। तो NO2 ते F2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा सी, पर इहदे मूहरे 2 भी लगा होया सी। अगर असीं इस इक्वेशन नूं देख के करदे तो सानूं 2 पावर रेज करनी पैनी सी। मतलब कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तुसीं रेट लिखदे उन्हें बन जाना सीगा कि कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नूं सानूं रेज करता 2 की पावर, F2 जिहड़ी है सिंगल पावर। तो दोनों केस दे विच अपने कोल जिहड़ी है वो रेट की जिहड़ी इक्वेशन है अलग नज़र आ रही है। क्लीयर? क्योंकि जिहड़ा मास एक्शन का लॉ वो तो कहता कि एक्सपैरीमेंट दी वे थ्योरेटिकल आ, जो बैलेंस इक्वेशन नज़र आ रही है ना वो अकॉर्डिंग वो सैट हो जाता। बैलेंस करन लगे आपां नूं इत्थे 2 लगाना पऊगा, क्योंकि इधर भी 2 बन रहे हैं, तो वो 2 पावर की होगी रिएक्टेंट की रेज होगी। प्रोडक्ट आपां लैने नहीं हुंदे, इस लॉ दे विच असीं प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन नहीं लैनी, सिर्फ रिएक्टेंट ते डिपेंड करेगा। सो इत्थे पावर है जी की होगी? रेज होगी। लेकिन जो एक्चुअल च देखा एक्सपैरीमेंटली देखा तो वो सिंगल पावर ते रेट डिपेंड कर रहा सी, डबल ते नहीं कर रहा सी। इहदे भी रीजन अगे आएंगे कि सिंगल ते क्यों करता, डबल ते क्यों नहीं कर, पर जो एक्सपैरीमेंट शो कर रहा सी ना वो ये रिजल्ट आ रहा सीगा, ये रिजल्ट सही सीगा। यानी कि एक्सपैरीमेंटली सानू ऑब्जर्वेशन सही मिल गए।
ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ no doubt it will depend upon the concentration of reactants, but with each term ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਰੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਚ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫॉर एग्जांपल F2 ਦੀ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ NO2 ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ 2 ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਲਾ ਮਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੋਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ आप इसनों आप रेट लाइक इक्वेशन भी बोलते हैं या रेट एक्सप्रैशन इक्वेशन तैयार हो गई है या रेट लाइक एक्सप्रैशन कहने लग गए आप। सो एक मैथमैटिकली एक टर्म आ गई साडे कोल, यानी ये मैथमैटिकली एक ला आ गया, एक्सप्रैशन आ गया। ये दस रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हैगा टू द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद बट विद ईच टर्म जिहड़ी रेज होएगी इट विल बी सेम और नॉट सेम हो भी सकती ते नहीं भी किदे नाल विद स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट। इन्हां दा असीं नाम रखिया होया जिहड़े असीं मोहरे लगाने आ, दीज आर नोन एज स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट। इन्हां दे नाल मैच भी हो सकदी, नहीं भी हो सकदी। ये कदों लगाई दे है, जदों असीं इक्वेशन नूं बैलेंस करदे आ उस वक्त लगाई दे है। सो जो बैलेंस इक्वेशन शो कर रही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਚ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫॉर एग्जांपल ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। मान लो आ रिएक्शन रहे आप ले लिया ए बी बी सी कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी बन रहा है तो रेट कितने डिपेंड करेगा। इतने शो कितना करोगे, इतने ए की पावर ए की बजाय उन्हें पी लिख दी, बी की पावर बी की बजाय क्यू लिख दी, सी की पावर ए बी सी लिखना सीगा, सी की पावर जी सी वो सी की बजाय पी क्यू आर लिख दी। फॉर एग्जाम्पल उन्हें ऐदा सैटिंग करती। हुण कहंदा हुण क्लीयर हो गया तुहानूं कितना क्लीयर हो गया कि जी पावर पी क्यू आर है इट मे बी सेम विद ए बी सी और मे नॉट बी सेम। हुण क्लीयर है। सो ए वैल्यू जी रेज होएगी कितनी कंसनट्रेशन की वैल्यू रेज होनी है एक्सपेरिमेंट दसूगा और उस एक्सपेरिमेंट जी रेज होएगी इट विल बी इक्वल टू ए बी सी। हो सकता है वो बराबर हो सकता ना भी हो। सो इस करके जी ए एक्चुअल वैल्यू होएगी ये रेट डिपेंड करता है। दिस इज नोन एज रेट ला एक्सप्रैशन, इनू कहते हैं रेट ला एक्सप्रैशन। फिर नाल ही उन्हें मास सैक्शन में शो करता। जे डिफरेंस देखना तो मास सैक्शन के विच रेट किहदे बराबर होएगा कि ए दी पावर रेज करांगे आपां जो नज़र आ रही है ए, बी दी पावर रेज करांगे बी, सी दी पावर रेज करांगे सी। सो हुण तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा कि दोनों चीज़ां अलग अलग होंदियां। सो असी डील करांगे विद रेट ला एक्सप्रैशन जिहड़ा कि एक्सपैरीमेंटल कांसैप्ट है, लेकिन ये बनिया कदों जदों ला ऑफ मास सैक्शन आया। सो साडे लिए दोनों की हो गए इंपॉर्टेंट हो गए। सो आ जी आप इत्थों तक क्लीयर कर लेना। डिफरेंस तुहानूं दस दिता है। कल आप नवीं टर्म इंट्रोड्यूस करांगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिकुलैरिटी, वो थोड़ी ये तो अलग चलणगियां, लेकिन पहला तुहानूं दोनों चीज़ां क्लीयर हो जानी चाहिए कि ला ऑफ मास सैक्शन ते ला ऑफ जिहड़ा रेट ला एक्सप्रैशन आ दोनों दे विच की डिफरेंस हैगा और दोनों जिहड़े हैगे आ एक दूजे नाल मैच किदां नहीं कर रहे। सो हुण जिहड़ा आपां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करांगे ना वो असीं रेट ला एक्सप्रैशन तो करांगे, नॉट फ्रॉम ला ऑफ मास सैक्शन। क्लीयर है जी। सो लॉ ऑफ मास सेक्शन तो नहीं करेंगे, ता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम रेट ला एक्सप्रेशन, यानी जो ऑर्डर भी कैलकुलेट होएगा इट विल आल्सो एक्सपेरिमेंटल फैक्टर वो भी साडे कोल एक्सपेरिमेंट तो बाद ही पता चलेगा। इट इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये असीं हुण कल एग्जाम्पल्स के नाल लवांगे कि किद्दां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जा सकता। सो ये रजे कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट। ते रिस्पॉन्स जरूर दिया करो।